Good morning, students. Now, today we are going to do chapter 4, that is organization of data. Before this, what we learned? We learned about the collection of the data by primary and secondary sources. Now, we'll be learning to organize, because if you collect the data, maybe your data is collected in a raw form. Suppose you are calculating the data for only 10 people or 50 people. Or take example like we are taking data of the marks of 50 students. Now 50 number of items here are just 50 or 10 or 20 like that. So in this case we can easily find out the average, because it's a very small area of which we are doing a study. So here, if the data is very large, say for example you are calculating the average of 50,000 or 10,000 people, then it is not possible to write it on a page and solve it easily. That is why there is a need to organize the data. तो ऑर्गेनाइज करना मीन्स सिंप्लीफाई करना, उस पूरे डेटा को थोड़ा कॉम्पैक्ट करना, छोटा करना, बट उसमें सारी एंटिटीज़ को हमको एंट्री करनी है. किसी भी वेरिएबल को, किसी भी यूनिट को हम छोड़ नहीं सकते. तो ऐसा होना चाहिए डेटा बेसिकली हम सबको गैदर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सारे लोगों की. छोटा होने के बाद भी उसमें सारे लोगों की काउंटिंग आ जानी चाहिए. ठीक है, हर एक वेरिएबल की जिसकी भी आप काउंटिंग करो. से फॉर एग्जांपल आप 10,000 स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकाल रहे हैं, सो यू शुड नॉट लीव आउट एनीवन, okay, from that 10,000 or 50,000 students. Then only you can say that your average is accurate. So let us read what is organization means. See, when an investigator collect the data for an investigation, these are called as raw data. So I already told you earlier also, raw data fresh collected data रहता है. फर्स्ट टाइम अपन कहीं से अरेंज कर रहे हैं डेटा को, ठीक है, तो उस डेटा को जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो, सो मे बी आर रिकॉर्डिंग और राइटिंग डाउन एवरीथिंग इन ऑन अ पेज. सो दैट इज कॉल्ड एज रॉ डेटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड. ठीक है, जिसको जैसा आपने नंबर लिया, मार्क्स लिए, आपने सारे सब्जेक्ट्स के मिक्सअप करके लिख दिए हैं, सारे स्टूडेंट्स के हम मान के चल रहे हैं. तो हमने सोचा कि हम 3 सब्जेक्ट्स का लेंगे, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी, और सबका हम डेटा ले रहे हैं. तो यहाँ पर हम अलग अलग डेटा को जब कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम जिस भी स्टूडेंट के पास में गए, हमने उससे कलेक्ट किए डेटा और वो सब एक पेजेस पे लिख दिए. ठीक है, तो ये अरेंज नहीं है. अभी हम सिर्फ एक पेपर पे लिख रहे हैं, दैट इज़ रॉ डेटा. इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा किसी टेबल के थ्रू या फिर किसी फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाइज. लाइक हमको सब्जेक्ट वाइज उस डेटा को अरेंज करना पड़ेगा. क्लास वाइज डेटा को चाहे तो अरेंज कर सकते हैं. तो इस तरह से उस डेटा को अरेंज करना पड़ता है. जब आप ऐसी बात करते हो कि इस डेटा को हम अरेंज करेंगे, देन ओनली वी से दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा. ठीक है, क्योंकि बगैर ऑर्गेनाइज करे हम मीन, मीडियन, मोड नहीं निकाल पाते थे. हमने पहले न्यूमेरिकल्स में भी देखा है. Now, raw data are not capable of offering any meaningful conclusion. This is just like a lump of clay without any specific shape or identity. So because they are saying here, because simply if you're taking or writing data just like that and you are not organizing it, then it is of no use. So organization of data refers to the arrangement of the figure in such a form that comparison of the mass similar data may be facilitated and further analysis may be possible. So as I told you that we need to do analysis of the data, like through mean, median, and mode, and this is how it is very important to make the arrangement of all the figures. And this data should be able to compare with each other. Like if you're taking the average for a math subject or English subject, and you want to compare that average, so first of all it will be comparable only when you will organize it. Like subject wise you will have to organize it, then only you can compare the averages also. Okay, तो एवरेज को पहले आपको निकालने से पहले तो उस पूरे डेटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा, फिर अपन एवरेज निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर कंक्लूजन्स निकालेंगे. इट हैपन्स लाइक दिस. ओके, नाउ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ आई टोल्ड यू, लाइक हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं. ठीक है, अब व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक, लाइक वी कैन से मेल फीमेल हो गया, एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो गया. तो हम इस तरह से अरेंज कर रहे थे, लाइक हम 0 से 10, 10 to 20 कंटिन्यूस सीरीज में कर रहे थे. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ओवर दैट, वी आर सिंपली कैलकुलेटिंग. लाइक वेजेस हम ले रहे थे, लाइक वी वर टेकिंग वेजेस लिख रहे थे, और क्या लिख रहे थे, 0 to 100 लाइक दैट. तो हम जो डेटा को जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वेजेस हो गए. यहाँ पर वेजेस के देख कर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसमें नंबर में क्लासीफाई कर रहे थे. तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. नाउ
let us study what is classification. Classification क्या होता है? See, there are 200 families in your locality. You have collected the data regarding their income, expenditure, education, religion, size of the family, etc. But this data will be of little of no use unless you know how many family are educated and how many are uneducated. How many family are earning income exceeding 20,000 per month and how many are earning income less than 5,000 per month. So here again they have given a good example over here. Suppose हम 200 फैमिली का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो हमारी लोकेलिटी की बात कर रहे हैं और हमने उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई करना देखना पड़ेगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन्स. तो हम अलग अलग जब तक क्लासीफाई नहीं करेंगे लाइक रिलीजन्स वाइज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, देन यू कैन नॉट नो दैट हाउ मेनी पीपल्स आर देर हु आर अर्निंग मोर और हु आर अर्निंग लेस. तो इस तरह से हमको क्लासीफाई करना पड़ता है. तो ये जो हम देख रहे थे क्लास इंटरवल, लाइक वी वर सॉल्विंग क्लास इंटरवल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक इन मीन, मीडियन एंड मोड. सो वी वर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लासीफाइंग द डेटा. लाइक हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, क्लास इंटरवल ही लिखते हैं. और क्लास इंटरवल क्या रहता है, बेसिकली क्लासीफाई कर रहे हैं. लाइक हम जब लिखते हैं 0 से 100 और उसके अगेंस्ट हम फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं यहाँ पर. तो फ्रिक्वेंसी जब भी आप लिखते हो लाइक 2, तो हम क्या मानते हैं उसको, बेसिकली ये जो नंबर्स है 0 to 100 उसके वैसे ऑब्जर्वेशन कितने वहाँ पे 2 है. मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी, ऐसे कितने लोग हैं जो कि उतना वेजेस अर्न कर रहे हैं या फिर उतना मार्क्स ला रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ वी सिंपली सेग्रीगेट. तो इस तरह से हमको करना पड़ता है क्लासीफाई. ओके, नाउ अगर वहाँ पे और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है, लाइक ऐसा नहीं कि हम एवरी टाइम वी आर क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस और मार्क्स. नो, समटाइम इट इज़ एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लिटरेट, इलिटरेट, ऐसा भी होता है. एजुकेटेड, अनएजुकेटेड हो गया. रिलीजन तो अलग अलग रिलीजन्स हो सकते हैं, इनकम अलग अलग हो सकती है. तो उसको सबको अलग अलग तरीके से आपको अरेंज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस एंटायर प्रोसेस, कि हम उसको आराम से एनालिसिस कर सकें, ठीक है, और कंपेयर कर सकें. ओके, तो ये सब बातें जो क्लासीफाई करने वाली बातें जो मैंने पहले की थी वही चीज़ है. ओके, नाउ यहाँ पर क्लासीफाइंग की डेफिनेशन है. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स. तो एज अ टोल्ड यू, अरेंज करने क्लासिफिकेशन होता है इन ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रिजेम्बलेंस. अकॉर्डिंग टू द रिजेम्बलेंस मतलब मिलता जुलता होना चाहिए. लाइक जब हम पुअर, नॉन पुअर सेग्रीगेट कर रहे हैं, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, तो वी आर एक्चुअली रिजेम्बलिंग दैम. जो मिलते जुलते हैं, रिजेम्बल करते हैं. जैसे कि जो नॉन पुअर जो दिख रहा है कि हाँ इनकम ग्रुप कम है इनका, तो उनको उसी ग्रुप में डालेंगे. लाइक दैट वी विल हैव टू put or arrange the data. Now the data are divided into different groups. For example, on the basis of education, persons may be classified as educated and uneducated. So educated, uneducated, literate, illiterate, poor, non-poor, like that you can divide, है ना. Then data are grouped on the classified on the basis of similarity. Also similar unit are put into one class and as the similarity changes, class also changes. तो अब जब हम सेग्रीगेट करते थे, क्लास चेंज हो जाएगी. मतलब कि देखो सिमिलरिटी, जैसे कि हम बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. लाइक हियर अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इनकम. तो इनकम को जब हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि इनकम और फ्रीक्वेंसी देखें. तो इनकम ग्रुप कौन सा देखा, 0 से 1000, फिर 1000 से 2000. तो 0 से 1000 के बीच में कितने ऐसे लोग हमने देखे कि 1000 है और हमने उसको फ्रीक्वेंसी में लिख लिया एज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हमने ऑब्जर्व किया है दैट दिस पीपल हु आर अर्निंग 0 to 1000 दे आर 1000 in number. Then the people who are earning 1000 to 2000 they are 227 in number. तो हम लोग इनको इनके जो एक सिमिलरिटी दिखती है दोनों में, उसके बेसिस पे हम कर रहे थे इनको. जो यहाँ पर एक जैसे लोग थे जो कि 0 से 1000 के बीच में कमा रहे थे, उनको यहाँ पर लिखा. फिर नेक्स्ट में लिखा जो कि 1000 से 2000 कमा रहे थे. तो लाइक दैट वी आर क्लासीफाइंग द डेटा. ये क्लास इंटरवल ही होता है, ठीक है. और ऊपर जो हमने लिखा था वो इनकम लिखी थी वहाँ पे, तो इनकम के बेसिस पे हम उसको अरेंज कर रहे थे, ठीक है. तो सिमिलरिटी देखकर हम कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ब्रीफ एंड सिंपल. मतलब कि ब्रीफ होना चाहिए, मतलब बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए. शुड बी कॉम्पैक्ट बट स्टिल इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड ईजी टू सॉल्व और डू द एनालिसिस. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म दैट अपीयर्स टू बी ब्रीफ एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. सिंपल होना चाहिए. देन यूटिलिटी होनी चाहिए, यूजफुलनेस. यूटिलिटी इज व्हाट, यूजफुलनेस. द क्लासिफिकेशन शुड इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द डेटा, मीन्स इट शुड बी यूजफुल टू यू. ओके, एज इट ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डेटा. तो जब हम क्लासीफाई करते हैं, बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हमारी उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाए. हम लोग उसको इस तरह से क्लासीफाई करते हैं,
ताकि उसकी जो रॉ डाटा है वो तो सब मिक्सअप है, उसको आप दिखाओगे भी किसी को तो वो किसी काम का नहीं है, बट जब आप उसको अरेंज करके दिखाते हो तो वो बहुत अच्छा दिखता है, डेटा अट्रैक्टिव लगता है और लोग उसको क्या करते हैं बेसिकली समझने भी आसान रहता है, लाइक एजुकेटेड अनएजुकेटेड लिटरेट इलिटरेट, सो इट ब्रिंग सम अट्रैक्टिवनेस कि यस मुझे डेटा देख कर ही समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहते हो। ओके, नाउ डिस्टिंक्टिवनेस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि डिफरेंशिएट्स बहुत सारे रहते हैं डेटा में, लाइक अलग अलग इनकम ग्रुप, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, पुअर नॉन पुअर, लाइक दैट। सो इट इज़ ईजी टू classify on the basis of that, and it is very good to make someone understand the data. Okay, because data is not going to say anything, because simply a person will read and understand. So data बहुत अच्छे से अरेंज करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। देन कंपेरेबिलिटी, मतलब कंपेयर करना में इजी होना चाहिए, शुड बी इजीली कंपेयर्ड, बिकॉज हियर यू विल बी डूइंग कंपैरिजन, बिकॉज वेन एवर यू फाइंडिंग आउट मीन मीडियन मोड व्हाट यू डू, यू फाइंड आउट द एवरेजेस। ओके, तो एवरेज को हम कंपेयर करेंगे तभी हम कुछ कंक्लूजन या उसके ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। देन साइंटिफिक अरेंजमेंट, साइंटिफिक अरेंजमेंट क्या होता है बेसिकली, क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा टू साइंटिफिक मैनर विच इंक्रीजेज दैट रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि साइंस में हम जो भी पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वो भी साइंटिफिकली अरेंज रहती है, तो वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स ग्रुप को अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया है, तो यहाँ पर भी हम ग्रुप्स में ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, और उन यूनिट्स को जिनको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसको पर्टिकुलर उस क्लासिफिकेशन डेटा जो है उसी के अंदर उसको पुट करेंगे। ओके, देन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है तो ऑलरेडी टोल्ड यू, अट्रैक्टिव लगता है, देखने में इजी होता है और किसी को भी अट्रैक्ट करता है, लाइक एजुकेटेड अनएजुकेटेड, रूरल एरिया अर्बन एरिया, तो बहुत अच्छा लगता है डेटा, क्योंकि उसमें जो नंबर्स पुट करते हैं उसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है कि क्या लिखा हुआ है। सो इट शुड बी ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दीज आर द जस्ट सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। ओके, तो यही उद्देश्य रहते हैं, दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ना। व्हाट आर द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, तो एक अच्छे गुड क्लासिफिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, तो कंप्रेसिवनेस रहनी चाहिए, मतलब कि इट शुड कवर ईच एंड एवरी डेटा एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट, मतलब आप एक बहुत बड़े रॉ डेटा को छोटे फॉर्म में कॉम्पैक्ट कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, बट स्टिल उसमें कॉम्प्रेहेंसिवनेस रहनी चाहिए, मीन्स एवरी डेटा शुड बी gathered or nobody not even the single element should be left out, उसमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तभी हम उसका एवरेज निकालेंगे, उस पर कंक्लूजन ले सकते हैं तो करेक्ट रहेगा। देन क्लैरिटी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा into classes should be absolutely clear and simple, so whatever you're doing the classification it should be clearly understandable, that is there should be no confusion about the placement of any unit in the group or any item in the group। तो किसी को आपने कहीं पर डाला है तो उसको देखकर लोगों को confusion नहीं होना चाहिए कि कैसे लिखा हो आपने, किस तरह से अरेंज किया हुआ है। देन होमोजेनिटी, एक जैसे, होमोजीनियस मीन्स like identical means same similar in nature, now all the items in the group or class must be homogeneous or similar to each other। So as I told you, see, when you're segregating, like I'm classifying the student on the basis of class or subjects, then there has to be some homogeneity, because see in 11th class 12th class there will be student of maths, so if I want to take out the average for the entire school of only math subject, that what is the average, then what I'm supposed to do, I will have to put the similar data into one single class columns, so this is how I'm going to arrange, तभी वो homogeneous बनेगा, मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट लिया उसके अंदर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को पुट करना पड़ेगा। देन सूटेबिलिटी, ये जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम क्लासेस बना रहे हैं, तो हमारी स्टडी को सूट करना चाहिए। ओके, सो द कंपोजिशन ऑफ द क्लासेस मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, सो वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव इज देयर ऑफ योर इंक्वायरी इट शुड सूट योर इंक्वायरी। ओके, so here homogeneous means alike in nature, means in homogeneity we are going to put all those values or all those items which are homogeneous in nature, means एक समान रहते हैं, जो जैसे कि हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड ले रहे हैं तो वहाँ पर जो भी हम नंबर पुट करेंगे टेबल के अंदर, अनएजुकेटेड में वही फ्रिक्वेंसी लिखी जाएगी जो कि सिर्फ एजुकेटेड लोग वाले हैं, तो उसको हम एंटर करेंगे वहाँ पे, और अनएजुकेटेड में वो लोग जिनकी काउंटिंग हम वहाँ कर रहे हैं उनके एंट्रीज वहाँ पर होंगी, तो दिस होमोजीनियस में डेटा एक जैसा रहेगा। लाइक इन क्लास ऑल्सो इफ यू आर टेकिंग डेटा फॉर द 11th क्लास एंड देयर आर वेरियस सेक्शन, सो स्टिल हमको वहाँ पर सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अगर मैथ्स के मार्क्स एंटर करें तो सिर्फ मैथ्स के ही लेने पड़ेंगे, उनको अरेंज करके जमाना पड़ेगा। होमोजीनियस एक जैसा डाटा हम मिक्स करके नहीं कर सकते, लाइक यू आर टेकिंग एवरेज फॉर एंटायर थिंग, लाइक मैथ्स के भी ले लिए, इंग्लिश के मार्क्स भी ले लिए, हिंदी के भी ले लिए, एंड यू आर टेकिंग आउट एवरेज ऑफ दैट, एंड ऑन द बेसिस वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन और एवरेज, बिकॉज एवरेज अगर कैलकुलेट भी किया
तो किसी काम का नहीं रहेगा, इट विल बी ऑफ नो यूज़, क्योंकि सबको मिक्स करके एवरेज निकाला है। हमको इंडिविजुअल एवरेज निकालने पड़ेंगे, लाइक वन फॉर मीडियम, वन फॉर मैथ्स, देन अनदर फॉर इंग्लिश, देन हिंदी, लाइक दैट। सो डेटा शुड बी homogeneous. Now suitability means it should fulfill the ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी हमारा उद्देश्य, जो भी हम करना चाहते हैं, जो हमने जो पर्पस के लिए डेटा को सिलेक्ट किया है उसको सर्व करना आना चाहिए। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको निकालना है, लाइक इसका एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, देयर क्लासिफिकेशन on the basis of the weight or marital status would make no sense. The data must be classified on the basis of different level of income and expenditures. So basically, if you are here taking the data of the student regarding their income and expenditures, तो वहाँ पर बेसिकली अगर हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी हम उनको जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली हमको इनकम का डेटा और एक्सपेंडिचर का डेटा चाहिए रहेगा। बेसिकली अगर कुछ और डेटा में आपने लिख रखा है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ वेट आप निकालो या मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, तो ये तो कुछ काम ही नहीं आएगा। स्टूडेंट का मैरिटल स्टेटस नहीं रहेगा वहाँ पर, तो बेसिकली हमको क्या लेना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब अगर मुझे एक्सपेंडिचर पैटर्न देखना है स्टूडेंट का, तो मुझे इनकम भी देखनी पड़ेगी, कितने इनकम ग्रुप वालों का एक्सपेंडिचर कैसा है, लाइक दैट विल हैव टू अरेंज द डेटा। देन स्टेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली a particular kind of investigation should be based on the same fact or set of classification. Stability in simple sense, it means to, so here stability has to be mean by selecting a रेगुलर बेस। मीन्स यहाँ पर हमको जो बेस है, सुटेबिलिटी मतलब कि आगे भी हम कंपेयर कर पाएँ हमारी जो भी हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, लाइक हम एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वहाँ पे बेस रखना पड़ता है, किसी ईयर को एज अ बेस मानकर हम निकालते हैं, लाइक इन इंडेक्स नंबर में भी। तो बेस जब हम किसी ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम आगे भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सुटेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसको बार बार फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर रहे हैं हमारे बेस ईयर में और उसकी वजह से आगे वाले जो डेटा है वो आपको बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन दिखा रहे हैं एक एक्चुअल एवरेज वैल्यूज़ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंपेरेबल हो पाए। तो फॉर दैट आई थिंक वी शुड मैनेज टू हैव वन सिंगल बेस ईयर। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम कोई भी नेशनल इनकम भी निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो एज अ बेस कैलकुलेट होता है, ठीक है। एवरी 10 ईयर्स वी कैलकुलेट दैट, तो वहाँ पे हम एक एज अ बेस मानना पड़ता है ताकि हम फ्यूचर में भी कैलकुलेट करेंगे ना पॉपुलेशन। तो दैट इज़ द थिंग कि हम उसको स्टेबिलिटी रखने के लिए, उस फिगर में स्टेबिलिटी रखने के लिए, क्योंकि एक एवरेज को आप अगले सालों में भी कंपेयर कर पाओगे, लाइक वी कैन ईजिली कंपेयर the average of 51 to 60 or 60 to 70s data to the other years. Every 10 years we calculate such kind of average. तो हम उस पॉपुलेशन के डाटा को कभी भी किसी भी 10 ईयर वाले से हम कंपेयर करके देख सकते हो, दैट इज स्टेबिलिटी। नाउ हियर what are the types of classification? So in this we'll have to discuss this. First one is here the chronological classification, but before this I think one is missing here, which is called as geographical classification. So जब geographical classification की अपन बात करते हैं तो बेसिकली हम अलग अलग एरियाज, मतलब कि अलग अलग जगह, जैसे कि हम बात कर सकते हैं लाइक वेरियस स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो हम उन स्टेट्स के रिगार्डिंग अगर उनकी पॉपुलेशन को हम डेटा में लिखते हैं तो आप ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग जगह के हिसाब से आप उस डेटा को अरेंज कर रहे होगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल मतलब किसी प्लेस की लोकेशन वाइज हम उस डेटा को अरेंज कर रहे हैं, लाइक व्हेन वी टेक द डेटा फॉर रेनफॉल ऑफ वेरियस प्लेसेस लाइक रतलाम, लाइक मे बी नीमच, मंदसौर, तो डिफरेंट प्लेसेस उसके अगेंस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं दैट हाउ मच रेनफॉल वॉज देयर, कितना रेनफॉल हुआ इन सेंटीमीटर वी टेक द डेटा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, लोकेशन वाइज, तो उसको बोलते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। Also we can take the example of population also in various states, so that will again be example of geographical classification, उसका example होगा। Now what is chronological classification? So whenever we are doing or classifying the data on the basis of time, it is called as chronological classification. Like here sales of a firm has been taken for year 2017 to 19, so 2017, 18 and 19 and the sales data is taken over here. तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वेरियस ईयर्स। सो ईयर्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्स को देख रहे हैं वहाँ पर। तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ chronological classification because here you are classifying the data on the basis of time period. Okay, then what is qualitative classification? So qualitative means
The classification is according to the qualitative or attribute of the data. So what is this qualities or attribute? Something there is called as attribute which you cannot count in form of number, like educated, uneducated, rural, urban, maybe honesty, dishonesty, truthfulness. Now these kind of things you cannot measure in number. इन चीज़ों को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते. Like here the example is given: religion, level of intelligence, IQ, intelligence quotient level. So these things cannot be expressed in form of numbers. Basically these are just kind of qualities or attributes which you cannot count in form of number. That is we call attribute. Now simple classification is what? See, it is called as classification according to the dichotomy. This is because the data is divided on the basis of existence or absence of a quality. Like whenever we are doing classification on the basis of just one or the other, like male and female we are doing like that, or healthy unhealthy we are taking, educated uneducated are example of dichotomy. So dichotomy means basically when you are having just one fold of classification, means it is a single fold of classification. मतलब हम यहाँ पे बहुत सारे क्लासीफाई नहीं कर रहे, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे कि कितना दो टाइप का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वहाँ पर, बस सिंगल फोल्ड मतलब कि मेल फीमेल के बेसिस पे हम सेग्रीगेट कर रहे हैं डेटा को, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, और उसमें नंबर पुट कर दिए. स्टूडेंट के अगर केस में देखेंगे तो दो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लाइक दिस. तो हम यहाँ पे सिर्फ दो के बेसिस पे कर रहे हैं, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स लाइक दैट. तो उसको बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, डाइकोटोमी. ओके. व्हाट इज़ मैनीफोल्ड? जब बहुत सारे क्वालिटीज़ ऑफ डेटाज हों, मतलब एक ही के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ के बेसिस पे हम कर रहे हो. जैसे कि हमने वहाँ पर गांव का ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि लिटरेट इलिटरेट और रूरल और अर्बन एरिया. तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करके दिखाते हैं. मीन्स दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन व्हेन देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटीज़ इन्वॉल्व. वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटी इन्वॉल्व मीन्स, सी हियर, जब सिंगल के बेसिस पे हम कर रहे थे तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल दो, मतलब कि सिर्फ लिटरेट इलिटरेट इसके बेसिस पे, या स्किल्ड अनस्किल्ड ऐसा हो सकता था. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दिस इज अ मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव सिलेक्शन क्लासिफिकेशन. सो हियर यहाँ पर दो के बेसिस पे हो रहा है, जिसकी स्किल्ड अनस्किल्ड. तो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक. नाउ हियर अगेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, लिटरेट इलिटरेट, देन अगेन लिटरेट इलिटरेट. सो वन इज दिस वन, the second one is literate illiterate, and the third one is rural and urban area. So here we are doing classification on the basis of three different characteristics. This is called as manifold classification. What is single qualitative classification? When we take just example of this, take this just one, on the basis of one single characteristic we are doing the classification, then it is called a simple classification. This is example of single classification or dichotomy. When we are doing so many or showing so many characteristics on this single table, what does it mean? It is called as manifold classification. So when classification according to the qualities of data involve more than one characteristic, it is called as manifold classification. So here this example was on the basis of that. Now the next one is quantitative or numerical classification. So classification here is done on the basis of numerical values or the facts. The number of classes are framed by keeping in view the lowest and the highest values as well as range of values of the data. Each class of the set of the data refer to the phenomenon like wages, profit, etc. Now here, when something is measured in form of number, like here we can see that this annual profit, you can measure it in the form of numbers. So here it is 0 to 1 lakh, 1 lakh to 2 lakh, 2 lakh to 3 lakh. So these are annual profit which you can easily measure in form of quantity, means numbers. So here before that we learnt about the qualitative, that means characteristics, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इन फॉर्म ऑफ नंबर्स. तो इसलिए हम उसको इस तरह से टेबल्स की हेडिंग के रूप में उसको लिखते हैं. यहाँ पर बेसिकली क्या करें, प्रॉफिट को हम डेटा के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा बोल सकते हो. सो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, लाइक इतना प्रॉफिट कौन सी कितनी फॉर्म्स को हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. बिकॉज हम यहाँ पे क्या नंबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, 0 to 1 lakh. कितने ऐसी कंपनी है जो कि 0 to 1 lakh का प्रॉफिट करी, तो देर आर 5 कंपनीज लाइक दैट. तो हम इस तरह से इसको हम अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. नाउ अगेन यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म होंगी ऐसी, बट सी हर एक का अलग अलग लिखते, उससे अच्छा एक टेबल में हम दिखा रहे हैं, सबको कैलकुलेट कर रहे हैं और सबको उसमें सेग्रीगेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स. नाउ this was the last one. Okay, and the rest we already learned while doing
डूइंग दिस ऑल दिस न्यूमेरिकल जब कर रहे थे तब हमने ये सब देखा था, वेरिएबल क्या होता है, ओके, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, लाइक दैट, ओके. सो लर्न इट टिल हियर, ओके. The types of classification, the objectives, the characteristics, and the meaning of classification, okay. Thank you.